So good morning to all of you, and let's just start with the first lecture of your semester 6. Finally, you are reached to the final year of that is the last semester, semester 6. Time flies so fast whenever you join the college in the semester 1, and now it's semester 6. Anyways, so dear students, here we are comes at the last semester, that is the semester 6. Uh, as per the protocol, we know that we discuss the syllabus first, and later on we will start the topic. So the semester 6, as usual, again it consists of the two papers of subject botany, paper 1 and the paper 2. The part of paper 1, that is having the name plant physiology 2 and the biotechnology. So in this paper 1, it consists of total 4 units: unit 1, unit 2, unit 3, and unit 4. Out of these 4 units, 2 units are allotted to me: unit number 3 and unit number 4. Unit number 3 and 4, it is a part of biotechnology. ये biotechnology का part है. Especially the different techniques, important techniques are involved in this unit. We will take a look regarding this all these 4 units, information related to these 4 units. हम चारों units की information देखेंगे. Later on, we will start with the unit number 3, which having the topic that is a plant tissue culture. The first unit of the paper 1, first unit, it is related with the growth, concept of growth, then growth curve, phases of growth, phytochromes, PR and PFR forms, their role, circadian rhythm and biological clock, plant growth regulators, role of auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, and ethylene. Plant movement, that is a tropic and nastic movements. Then unit number 2 consists of the part of photoperiodism, physiology of flowering, photoperiodism and vernalization, role of florigin, senescence and abscission. Then seed dormancy, causes and role, methods to break seed dormancy, plant defense mechanism, then definition, hypersensitive response and systemic acquired resistance, role of secondary metabolites, terpenes and phenolic compounds. तो ये जो पहले दो यूनिट्स है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, दिस पार्ट विल बी टीच बाय डोइफोडिस सर. ठीक है, ये दो यूनिट जो रहेंगे वो डोइफोडिस सर लेंगे आपके. एंड रिमेनिंग 2 यूनिट्स जो है, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, इट इज अलॉटेड टू मी. ठीक है, ये यूनिट नंबर 3 और 4 जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ. बात करते हैं यूनिट 3 की. Unit 3 consists of plant tissue culture. It is one of the important technique of biotechnology. Biotechnology की एक important technique है ये plant tissue culture. In short, it is called as a PTC, plant tissue culture. In this plant tissue culture, we have to study the definition of plant tissue culture. Then some of the terms, that is a totipotency. What is meant by the totipotency? Then explant, aseptic culture, in vitro micropropagation, methods of sterilization, then autoclaving, dry heat sterilization, chemicals, culture media, MS media, hormone requirement, and application of tissue culture. So all this content we have to study in this unit number 3. सबसे पहले हमें टिश्यू कल्चर क्या होता है वो डेफिनेशन की हेल्प से पता करना है. कुछ टर्म्स पढ़नी है, टोटिपोटेंसी पढ़ना है, एक्सप्लांट क्या होता है पढ़ना, असेप्टिक कल्चर मतलब क्या होता है पढ़ना है, इन विट्रो माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है देखेंगे, मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, दैट इज स्टेरिलाइजेशन, रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन. तो ये स्टेरिलाइजेशन कौन सी टेक्निक से किया जाता है वो देखना पड़ेगा. ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन एटसेट्रा.
उसके बाद में हमें कल्चर मीडिया, मतलब जिस मीडियम में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे तो वो मीडिया कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये एमएस मीडिया क्या होता है वो हम देखेंगे। एमएस, दैट इज Murashige and Skub, the name of scientist. देन हार्मोन रिक्वायरमेंट, कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। एंड एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। Then callus and organ culture we will discuss. Shoot tip and anther culture is involved in that and its application. Hybrid production and its application. Hybrid कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि हाइब्रिड सुने होंगे आप लोगों ने, उसी तरह ये हाइब्रिड होते हैं। तो हाइब्रिड कैसे बनते हैं हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो है इट इज रिलेटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग। फोर्थ यूनिट इट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज एडवांस डे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जो एडवांस प्रोसेसेस है वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टूल्स, देन डिफरेंट एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ligases, DNA polymerases, plasmids as a closing vector। ये सभी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में। देन द डीएनए लाइब्रेरी, cDNA library and gDNA library, that is the genomic DNA library। Later on we will go for the Agarobacterium tumefaciens। ये यहाँ पे कंटिन्यूसली या सेपरेटली है, ये इट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया Agarobacterium tumefaciens। मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, मतलब Agarobacterium tumefaciens बैक्टीरिया की हेल्प से जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है वो देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड हम लोग देखेंगे वहाँ पे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, examples of BT cotton and golden rice. So all this content we will study under the heading genetic engineering in the unit 4. So that we will just start the third unit before the third unit, which is the part of plant tissue culture. Without wasting time, that we are going to start this third unit। देखिए थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक दिया है प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, थर्ड यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, एंड व्हाट इज मीन बाय दिस टोटिपोटेंसी। ठीक, सो द प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में से कुछ प्लांट्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को पता भी होंगी टेक्निक, लेकिन अगर कुछ लोगों को पता नहीं हुआ कि दैट ये टेस्ट ट्यूब में प्लांट्स क्यों लगाए हुए हैं या फिर टेस्ट ट्यूब में से प्लांट्स कैसे निकल रहे हैं, ऐसा अगर डाउट आ रहा होगा तो उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, प्लांट टिश्यू कल्चर। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पीटीसी। Now let's just talk about the definition of plant tissue culture। हम लोग definition देखेंगे plant tissue culture की। Plant tissue culture it is a science of growing the plant cells, tissues or organ isolated from mother plant on the artificial media in vitro under controlled condition। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर की सिंपल मीनिंग यहाँ पे इन लोगों ने दी है कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मीनिंग क्या होता है, दैट डेवलप कंप्लीट प्लांट। हम लोग कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल, टिश्यू और ऑर्गन। किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट की अगर आप लोगों के पास सिंगल सेल अवेलेबल है, सिंगल टिश्यू अवेलेबल है, या फिर एक कोई ऑर्गन अवेलेबल है, या फिर फॉर एग्जांपल लीफ है, स्टेम है, सीड है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन से, सेल से या फिर टिश्यू से हम लोग कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्लांट की सेल अवेलेबल है, ठीक है, सेल अवेलेबल है, तो उस सेल से आप लोग एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, सो द प्लांट टिश्यू कल्चर दैट इज द प्रोसेस in which the process in which
The culturing or growing isolated protoplast, cell, tissue or organ. It is placed on a nutrient medium which shows the growth and it develops into the complete plant. अगर हम लोग सिंगल सेल टिश्यू या फिर ऑर्गन को यूज करते हैं, उसको यूज करके अगर हम लोग उसे न्यूट्रिएंट मीडिया पे रखते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियली अगर हम लोग उस सेल को मॉडिफाई करते हैं, उसमें अगर ग्रोथ करवाते हैं तो उस सेल से हम लोग कंप्लीट प्लांट बनवा सकते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. Plant tissue culture is a science of growing plants, cells, tissues, or organ isolated from the mother plant on the artificial media in vitro under the control condition. In vitro का मतलब सब लोगों को पता है artificially, in vivo का मतलब होता है naturally. artificial media मतलब जैसे कि अगर हमें प्लांट लगाना है, ठीक है, अगर हमें प्लांट लगाना है तो प्लांट को हम कहाँ पे लगाते हैं? मैसेज करके बताइए, प्लांट को कहाँ पे लगाते हैं हम लोग? चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए. चलिए, किसी को तो भी पता है या फिर किसी ने तो भी सुना, किसी ने तो भी मेरी आवाज सुनी यहाँ पे. अच्छा, ये तो बहुत ही एकदम एडवांटेजेस, एकदम खतरनाक काम हो गया यहाँ पे. प्रिया बरेंदिया ने आंसर किया है. प्रिया बरेंदिया गिव मी द आंसर दैट मड मतलब कीचड़. एकदम भी कीचड़ नहीं होता है, मिट्टी में हम लगाते, सॉइल में, सॉइल इज द एक्सपेक्टेड आंसर. चलिए, किसी को तो भी पता है कि प्लांट्स सॉइल में लगाते हैं करके. अभी आंसर मत कीजिए बाकी, ठीक है. सॉइल में लगाते. प्रिया बरेंदिया ने आंसर किया कि मड और फिर मिट्टी. स्नेहा चौहान ने आंसर किया, मेरा क्वेश्चन था कि दैट हम लोग प्लांट्स को कहाँ पे लगाते हैं, तो इसका आंसर था स्नेहा चौहान प्रेजेंट सर. इसका मतलब स्नेहा चौहान प्रेजेंट सर जगह पे प्लांट्स को लगाया जाता है. इतना तो कॉमन सेंस रहता ही है कि प्लांट्स को कहाँ पे, और एज ए स्टूडेंट ऑफ बॉटनी उतना तो पता ही चल जाता है. या फिर इतना भी यानी ध्यान नहीं होगा, ठीक है, हेलुसिनेशन में होंगे ये. मिस स्नेहा चौहान, मैंने पूछा क्या है और वो प्रेजेंट सर बोल रही है. अभी तो लेक्चर जस्ट स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है. यानी सिर्फ माइंड में एक ही चीज चलती होंगी, दैट प्रेजेंट ही, बाकी तो कुछ काम का ही नहीं है, नथिंग एल्स. एनीवे, अच्छी प्लेस है ये प्लांट लगाने की, स्नेहा चौहान प्रेजेंट सर. अगर कभी मिलती है तो मुझे बताइए आप. इट विल बी द पार्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च का पार्ट हो सकता है ये. चलिए आगे बढ़ते. नेचुरल कंडीशन में हम लोग प्लांट को सॉइल में लगाते हैं, तो सॉइल जैसा ही अगर आर्टिफिशियल मीडियम अगर बनाते हैं तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया कहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लांट जो ग्रो करवाने वाले हैं वो आर्टिफिशियली ग्रो करवाने वाले हैं. एक सिंगल सेल से, टिश्यू से या फिर ऑर्गन से हम लोग कंप्लीट प्लांट बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर. अभी प्लांट टिश्यू कल्चर अगर करना है तो हमें उसकी हिस्ट्री थोड़ी जानना जरूरी है. प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड हिस्ट्री रिलेटेड टू द प्लांट टिश्यू कल्चर. The first word, Haberland, it is the name of scientist. Haberland is considered to be the father of plant tissue culture, who conceived the concept of totipotency and cell culture in 1902. हैबरलैंड नाम के साइंटिस्ट है, उन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एकदम कन्विंसिंग कॉन्सेप्ट दिया था रिलेटेड टू द प्लांट टिश्यू कल्चर. और उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, दैट टर्म इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. ठीक है, उस टर्म को हम लोग कहेंगे टोटिपोटेंसी. So the scientist Haberland is considered to be the father of plant tissue culture.
हैबरलैंड को फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है, because he gives a convincing concept or the convincing explanation related to the totipotency and the cell culture. Now, what is this totipotency? Totipotency is the ability of single cell to divide and produce all the differentiated cells in a organism. तो टोटिपोटेंसी की डेफिनेशन दी है इन लोगों ने यहाँ पे, एक सेंटेंस बताया टोटिपोटेंसी, इट इज एबिलिटी ऑफ सेल, ये सेल की एबिलिटी होती है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब होता है एक सिंगल सेल से, एक सिंगल टिश्यू से या फिर सिंगल ऑर्गन से हम लोग कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। तो सिंगल सेल से कंप्लीट प्लांट बनाने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हैबरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने एक इम्पोर्टेंट टर्म दी थी, जिस टर्म का नाम है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मीनिंग होता है द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू द कंप्लीट प्लांट, ठीक है। किसी भी सेल की एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सेल, द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, मतलब किसी सेल की एबिलिटी क्या है कि वो डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो जो एबिलिटी होती है सेल की, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज अ टोटिपोटेंसी, उसे हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। He was the first to consider the culturing cell aseptically in a nutrient solution. यानी हैबरलैंड ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे कि उन्होंने आर्टिफिशियली सेल्स को ग्रो करवाना शुरू किया था न्यूट्रिएंट मीडियम में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ठीक है, एक लिक्विड मीडियम में उन्होंने सेल्स को ग्रो करवाना वहां पे शुरू किया था हैबरलैंड में 1902 में। However, he was unsuccessful in his culture as he failed to recognize that the cell differentiation requires plant growth regulators. तो एक्सपेरिमेंट जैसे ही स्टार्ट किया उन्होंने उन्होंने क्या किया, सेल्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करवाना शुरू किया सबसे पहले। लेकिन उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो था थोड़ा अनसक्सेसफुल हो गया था, because his culture as he failed to recognize that cell differentiation required the plant growth regulators. मतलब देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, सेल्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाल दिया था। अभी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डालने के बाद सेल्स की ग्रोथ तो हो रही थी, ठीक है, साइज तो बढ़ रहा था सेल का, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था। डिफरेंशिएशन मतलब जैसे कि जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद में फिर अलग अलग ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू होता है, उसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हैबरलैंड ने सेल्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ऐड तो कर दिया था, अभी सेल्स की ग्रोथ भी होना शुरू हो गया था, लेकिन सेल्स से अलग अलग ऑर्गन, मतलब प्लांट अगर बनना है तो उससे रूट सिस्टम बननी चाहिए, शूट सिस्टम बननी चाहिए, वो अलग अलग ऑर्गन्स नहीं बन रहे थे। क्यों नहीं बन रहे थे, बिकॉज इट रिक्वायर्ड द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब प्लांट हार्मोन्स की जरूरत वहां पे आ रही थी, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जरूरत वहां पे आ रही थी। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को फिर कैसे यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए उन्होंने ग्रोथ की अलग अलग कंडीशंस को पता करना शुरू किया कि दैट व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ व्हिच हेल्पफुल फॉर द डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले उन्होंने देखा था द टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में उन्होंने बताया था। तो ग्रोथ, दो टाइप की ग्रोथ उन्होंने बताई थी, एक बताई ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ एंड सेकंड वन इज द अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ। ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इट ऑकर्स व्हेन द प्लांट सेल और द टिश्यू एक्सप्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द कल्चर मीडिया एंड कंटिन्यू टू ग्रो विद देयर स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ का मतलब होता है इट ऑकर्स व्हेन द प्लांट और द सेल, प्लांट सेल और द टिश्यू आर ट्रांसफर्ड टू द कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया, ठीक है।
ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ की केस में द टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ के केस में इट ऑकर्स व्हेन द प्लांट सेल और द टिश्यू, जिसे हम लोग एक्सप्लांट कहेंगे, are transferred to the culture media and continue to grow with their structure preserved. ऑर्गेनाइज ग्रोथ जो होंगी वो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सेल या फिर टिश्यू को लेंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया जैसे कि आर्टिफिशियल हमें सॉइल वहां पे बनानी पड़ेगी। सॉइल में क्या क्या होता है, सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वैसा ही एक मीडियम हम लोग बनाएंगे तो उसे हम लोग कल्चर मीडिया कहेंगे। एंड कंटिन्यू टू ग्रो विथ देयर स्ट्रक्चर प्रिजर्व। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ के बारे में देखेंगे। इट ऑकर्स व्हेन द पीस ऑफ होल प्लांट are cultured in vitro and the cells aggregate and typically lack any recognizable structure. देखिए अनऑर्गेनाइज ग्रोथ, ऑर्गेनाइज ग्रोथ के केस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वहां पे डेवलप होगा, राउंडेड स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होगा वहां पे, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज ग्रोथ के केस में वहां पे कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई शेप नहीं रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर ग्रो होगा सेल से, ये जो स्ट्रक्चर ग्रो होगा वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, मतलब उसका कोई साइज कोई शेप नहीं होगा वहां पे, ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन द पीस ऑफ होल प्लांट आर कल्चर्ड इन विट्रो कंडीशन and the cells aggregate and typically lack any recognizable structure, यानी इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। there will be no specific structure in case of unorganized growth. ऑर्गेनाइज ग्रोथ के केस में क्या रहेगा, वहां पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, राउंडेड फॉर्म में मिलेगा, स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। सो इट इज ऑर्गेनाइज ग्रोथ। अनऑर्गेनाइज ग्रोथ जो रहेंगी प्लांट टिश्यू कल्चर के केस में, सेल और टिश्यू को उनके मन में जैसे आएंगे उस शेप में साइज में उसको ग्रो होने दिया जाएंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज ग्रोथ। अनऑर्गेनाइज ग्रोथ का एग्जांपल दिया है कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। So these are the examples of unorganized growth, callus and suspension culture. So these are the some photographic images which are related to the plant tissue culture. Plant tissue culture से related कुछ photographic images है यहाँ पे। Organized growth, you can see here organized growth, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक specific direction में हमें यानी यहाँ पे क्या develop करना था, single cell टिश्यू या फिर ऑर्गन से कंप्लीट प्लांट बनाना था। तो यहाँ पे प्लांट बन रहा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। नीचे की तरफ आप लोगों को रूट सिस्टम दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ शूट सिस्टम दिखाई दे रही है प्लांट। और जो व्हाइट कलर का ये जो जेली लाइक सब्सटेंस जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस जेली लाइक सब्सटेंस इट इज द न्यूट्रिएंट मीडिया। ये न्यूट्रिएंट मीडिया है एंड दिस न्यूट्रिएंट मीडिया इट इज कॉल्ड एज अगार, ठीक है, इसे अगार कहा जाता है। तो ये सॉइल का काम करता है। Sorry for disturbance, that one of the call is there on my mobile. People don't know that this is my lectures time. Anyway, so that there are certain photographic images, the photographic images like organized growth, unorganized growth, unorganized growth in case of suspension culture, here in case of callus culture. सो ऑर्गेनाइज ग्रोथ के केस में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो व्हाइट कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जेली लाइक सब्सटेंस, इट इज कल्चर मीडिया, इसे कल्चर मीडिया कहा जाता है। ये हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो इस पे प्लांट को ग्रो किया जाता है सिंगल सेल टिश्यू या फिर ऑर्गन की हेल्प से। उसके बाद में अनऑर्गेनाइज ग्रोथ मतलब कैलस ग्रो हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। सेल की ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे बहुत अनवांटेड अनऑर्गेनाइज कोई शेप नहीं है इसका, किसी भी डायरेक्शन में उसकी ग्रो हुई है। अनऑर्गेनाइज ग्रोथ कैलस कल्चर है ये। और दूसरा है अनऑर्गेनाइज ग्रोथ सस्पेंशन कल्चर, मतलब ये लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया यहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसे सस्पेंशन कल्चर कहा जाता है। ये हम लोग देखेंगे कि वीडियो रिप्रेजेंटेशन भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे टिश्यू कल्चर वहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टिश्यू कल्चर सिस्टम।
टिश्यू कल्चर सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, that what will be the criteria behind the establishment for the tissue culture system. टिश्यू कल्चर सिस्टम कैसे काम करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक्सप्लांट सिलेक्शन सबसे पहले स्टेप जो दी है टिश्यू कल्चर सिस्टम में, एक्सप्लांट सिलेक्शन। व्हाट इज दिस एक्सप्लांट? एक्सप्लांट क्या होता है? Explant, it is the any material like the root, stem, leaf, even the seeds also. That part which is utilized in the process of tissue culture. टिश्यू कल्चर में यूज होने वाला प्लांट का कोई भी जो पार्ट होता है, जिससे कि फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड और इवन द सीड, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। उसे हम लोग एक्सप्लांट कहेंगे। एक्सप्लांट सिलेक्शन, हम लोगों को एक्सप्लांट सबसे पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई भी एक्सप्लांट हम लोग ऐसे नहीं ले सकते। एक्सप्लांट सिलेक्शन मे बी फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीव्स और द बर्ड्स। रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं या फिर बर्ड्स ले सकते हैं। आइसोलेशन एंड स्टेरिलाइजेशन, मतलब उन एक्सप्लांट को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, साथ ही में उसे स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? Sterilization, it is a technique, it is one of the important technique, or we can call it as it is a backbone of the plant tissue culture. Without sterilization, you cannot hit inch of distance in case of the plant tissue culture. Plant tissue culture में आप लोग थोड़ा सा भी आगे नहीं जा सकते without sterilization. So the sterilization, it is the process of removal of contamination from the materials or the contents which are used in the tissue culture. टिश्यू कल्चर में यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, apparatus है, मटेरियल है, उन सभी मटेरियल को हमें स्टेरलाइज करना जरूरी है, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, इन्फेक्शन रिमूव करना जरूरी है। अगर कंटेमिनेशन रिमूव नहीं करते हैं, दैट एट एनी स्टेज योर एक्सपेरिमेंट में फेल। किसी भी स्टेज पे आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर media is important for the whole process of the plant propagation. So all the work should be performed in a special rooms or inside the hoods or cabinets from which microorganisms are excluded. हमें ऐसी जगह पे काम करना पड़ेगा फिर कि जहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं आ सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सके। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक जगह पे बैठे हुए हैं पर्सन, and they with the hand gloves and all the aseptic techniques, सभी aseptic techniques फॉलो करके ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस कैसे काम करती है, टेक्निक क्या काम करती है, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ऑल दिस प्रोसेसेस वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स। आई थिंक जस्ट मिनट।